negotiations are still going on. No, look, I mean, negotiations are still going on in the sense that nobody said the negotiations are off. I mean, and people do talk to each other. I mean, it's not like there's a kutti there. So when it comes to the trade rate, the interests of farmers, when it comes to our strategic autonomy, when it comes to opposition to mediation, this government is very clear. Our positions are there. If anybody disagrees with us, please tell the people of India that you're not prepared to defend the interests of farmers. भारत अमेरिका के बीच इन दिनों व्यापार को लेकर तनाव जारी है। कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन भारत किसी भी स्थिति में अमेरिका को अपनी मनमानी करने नहीं दे रहा है और इसी कारण अब तक हुई बैठकों में दोनों देश किसी भी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच पाए हैं। हालांकि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी इस मुद्दे पर बात की। जयशंकर ने साफ किया कि अमेरिका के साथ ट्रेड पर बातचीत में भारत के किसानों और छोटे उत्पादकों के हित सबसे ऊपर है। उन्होंने कहा कि भारत अपनी रेड लाइन से कभी समझौता नहीं करेगा, चाहे बात किसानों के हितों की हो या रणनीतिक स्वायत्ता की। अमेरिका के साथ ट्रेड को लेकर विदेश मंत्री ने कहा कि नेगोशिएशंस अभी चल रही हैं, लेकिन हमारी कुछ रेड लाइंस हैं। सबसे जरूरी बात है किसानों और छोटे उत्पादकों के हित। ये ऐसा मुद्दा है जिस पर समझौता संभव नहीं है। उन्होंने विपक्ष और आलोचकों पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर कोई असहमत है तो उन्हें जनता से कहना चाहिए कि वो किसानों के हितों की रक्षा करने को तैयार नहीं है और उन्हें रणनीतिक स्वायत्ता की अहमियत नहीं। उन्होंने कहा, हम अपनी संप्रभुता, स्वतंत्र रणनीति और नागरिकों के हितों पर समझौता नहीं करेंगे। बातचीत और नेगोशिएशंस के लिए हम तैयार हैं, लेकिन राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है। उन्होंने कहा, अमेरिका से कोई कट्टी नहीं बल्कि बातचीत जारी है। Negotiations are still going on. But the bottom line is, we have some red lines. You say negotiations are still going on because we heard the team is not coming there? No, look, I mean, negotiations are still going on in the sense that nobody said the negotiations are off. I mean, and people do talk to each other. I mean, it's not like there's a kutti there. So look, there is what happens is, we have red lines. In the negotiations, we have to be clear as to, red lines by definition are lines to be maintained and defended. Keeping that in mind, see what we get. And frankly, where we are concerned, the red lines are primarily the interests of our farmers and to some extent of our small producers. When it comes to the trade rate, the interests of farmers, when it comes to our strategic autonomy, when it comes to opposition to mediation, this government is very clear. Our positions are there. If anybody disagrees with us, please tell the people of India that you're not prepared to defend the interests of farmers. Please tell the people of India you don't value strategic autonomy. We do. We will do whatever we have to do to maintain it. इस दौरान विदेश मंत्री ने ट्रंप के तौर तरीकों को लेकर भी बात की। उन्होंने कहा कि दुनिया के साथ और यहाँ तक कि अपने देश के साथ व्यवहार करने का तरीका ट्रंप का काफी अलग है। Well, we've not had a US president who's conducted foreign policy as publicly as the current one. That itself is a departure. That's not limited to India. That's limited. In fact, for that matter, who's not conducted his domestic policies as publicly as this one too. So I think we got to understand, before I come to India-US, that the President Trump's way of dealing with the world, even dealing with his own country, is a very major departure from the traditional orthodox manner of doing so. वहीं रूस से तेल आयात और अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों पर बात करते हुए जयशंकर ने अमेरिका के दोहरे रवैये पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा, इससे तेल का मुद्दा बताया जाता है, लेकिन चीन जो रूस से सबसे बड़ा आयातक है, उस पर कोई टैरिफ नहीं लगाया गया। भारत को निशाना बनाने वाली दलीलें चीन पर क्यों लागू नहीं होती। उन्होंने यूरोप और अमेरिका के व्यवहार पर भी टिप्पणी की और कहा कि अगर आपको रूस से तेल या उसके प्रोडक्ट खरीदने में दिक्कत है तो मत खरीदिए, लेकिन यूरोप खरीदता है, अमेरिका भी खरीदता है। अगर पसंद नहीं तो हमसे मत खरीदिए। It's funny, you have people who work for a pro-business
American administration accusing other people of doing business. Okay, that's really curious. But here's the point. If you have a problem buying oil from India, oil or refined products, don't buy it. Nobody forced you to buy it. I mean, but Europe buys, America buys. So you don't like it, don't buy it. विदेश मंत्री ने साफ किया कि भारत अपने राष्ट्रीय हित और रणनीति स्वायत्ता को ध्यान में रखकर ही ऊर्जा से जुड़े फैसले लेगा और किसी दबाव में नहीं आएगा। रूस से तेल खरीदने की वजह से अमेरिका ने भारत पर अतिरिक्त टैरिफ के तौर पर 25% की पेनाल्टी लगाई है और ये भी कहा है कि इसकी वजह से रूस का बड़ा नुकसान हुआ है और भारत ने तेल खरीद पर पुनर्विचार किया। हालांकि भारत ने भी अपना रुख साफ किया है और बताया है कि तेल खरीद अभी भी जारी है। वहीं भारत पाकिस्तान रिश्तों पर विदेश मंत्री ने कहा कि 1970 के दशक से भारत में एक राष्ट्रीय सहमति रही है कि किसी भी तरह की मध्यस्थता स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा 50 साल से ये तय है कि पाकिस्तान के साथ रिश्तों में हम किसी तीसरे पक्ष की दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं करेंगे। Since 1970s, for more than 50 years now, there's a national consensus in this country that we do not accept mediation in our relations with Pakistan. विदेश मंत्री ने तमाम मुद्दों पर विस्तार से बात की। उन्होंने ट्रेड, तेल और भारत पाकिस्तान रिश्तों में मध्यस्थता को लेकर अपनी बात रखी। उनके दिए गए इन बयानों पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।